even the biggest celebrity in the industry or the biggest politician has bots. Oh, things are very quick. एक swipe left और right के ऊपर. आज के ज़माने में प्यार नहीं है. Government has a law only for women. अगर ये चीज़ें चेंज होगी ना तो थोड़ा डाइवोर्स कम होगा, रिलेशंस कम टूटेंगे, फैमिलीज साथ रहेगी. अभी क्या हो रहा है ना, लड़कियां लड़के ढूंढती हैं 2 साल शादी कर लो, डाइवोर्स ले लो, एलिमनी लेके बैठ जाओ. Everything has to be 50-50. If a woman is working and then there's a divorce, after that also the pressure of alimony goes on the boy. Why doesn't the boy get the alimony from the woman? Today if you go to the police station and say कि मेरे को सना ने छेड़ा, the police वाला will slap you and tell you ये ब्योड़े यहाँ से निकल. ठीक है, पर वही चीज़ अगर मैंने करी ना तो तू अरेस्ट हो जाएगा. आज की जो मेरी गेस्ट है सना सूरी, उनका प्रोफाइल ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, क्लासी है. वेलकम हर ओनली ऑन द बी नाया पॉडकास्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सना सूरी, वेलकम टू द बी नाया पॉडकास्ट. फाइनली हम इतने टाइम से प्लान कर रहे हैं दैट वी विल शूट समडे एंड फाइनली इज द डे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. एंड हाँ, हम बहुत ज़्यादा टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली दैट डे इज़ हियर एंड मे बी द डे इज़ अ गुड लक. दैट्स व्हाई वी मेट टुडे. I have loved your Instagram. I should call someone who can inspire आज की जनरेशन में जो भी लड़कियां हैं. So आपकी प्रोफाइल से देख के पर्सनैलिटी ऑफ प्रियंका चोपड़ा, मे बी आई हैव दैट इन माई हेड. Oh, she's my idol, though. Thank you for naming her with me. I love her and see, I will not comment on anybody or any girl for wearing clothes like that on camera. I also wear with my family. But personally, what I feel is because of my past experience that if I show my body and if I do roles like being somebody's girlfriend or being somebody's wife on camera, I'm going to have a very, very short period of my career in the industry, which is what I have noticed with my experience. So I have understood this, that respect and dignity you're going to get only by yourself. Yes, yes. सो आई थिंक जिस तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो उसी तरीके से आपको काम मिलेगा, उसी तरीके से आपको लोग मिलेंगे और उसी तरीके से आपका जो फ्रेंड सर्कल भी है ना वो बनेगा. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस. Otherwise, I'm sorry, girls. I have no right to judge you all for anything. But this is what I personally think, that Instagram, Facebook, and social media is not to show your skin, but show your talent and show what you are as a person. This is what I believe for social medias. But you tell me that how do one should use their own social media? Because in my last podcast, मेरे podcast पे आरजे अर्चना आई थी. मैंने उनको पूछा था, what's the way to come to radio nowadays? So she told me कि आपको कुछ भी बनना हो ना, right now your CV is your social media. True, very true. So you tell me that why आज के टाइम पे जो पहले लोग अपना फोटो लेके जाते थे कि ये देखो I have ऐसा done है, that. I have done that. एंड नाउ एवरीवन इज लाइक अरे इसके कितने फॉलोअर्स है, इसको लेना चाहिए. ये बिकॉज जब मैं किसी मार्केटिंग फर्म में या कहीं पे भी काम करता था, सबसे पहला पैरामीटर ये देखते थे इसके पास कितने फॉलोअर्स है, ये अपने को अच्छा रीच देगा. आई डोंट नो वो टैलेंटेड है नहीं है, उसका कंटेंट क्या है, बट पहला आपका पर्सपेक्टिव वो बन जाता है ऐसा रैंकिंग की तरह कि नंबर 1 है, नंबर 2 है. But 1 second, even the biggest celebrity in the industry or the biggest politician in in the world today has bots. ओह, Okay. So what I believe is followers पे मत जाओ. बिकॉज वो bots होते हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी होंगे, लोगों के भी होंगे. तो आई डोंट थिंक सो यू शुड गो on followers and judge a person and a profile by looking at the followers. I think you should judge a person by looking at the profile.
what he and she has maintained, what content is he giving you and your family and the fans, and also Google. Okay. So I was known as an IP. I was a dancer for KKR cheerleaders. I was a cheerleader. I'm the India's first Indian cheerleader in history. Wow. So I started my career like that. So my journey was as a dancer, actor. I was Femina Style Diva, Miss Maharashtra, and today I'm an internet personality. तो गूगल पे मेरे जितने टाइटल बदलते गए ना, हाँ। वो गूगल ने खुद ही बदले हैं. Wow. So if you type Sana Suri, you will see internet personality there. Yes. Obviously, I can't write that, right? So पहले डांसर लिखा था, cheerleader लिखा था, फिर एक्टर लिखा था. तो वो जो टाइटल्स मैं अचीव कर रही हूँ ऑन गूगल, आई थिंक that is my actual real profile. That has no followers. Yeah. Yeah. Okay, so Google is my real profile. Okay. And that is Google is what giving me titles. I'm also an IMDb. I've had a Dada Saif Phalke official award. No fake awards. जी. So I think अगर आपको कोई यूट्यूबर या कोई एक्टर या किसी की नोन प्रोफाइल अगर इंस्टाग्राम पे देखनी है, डोंट गो ऑन फॉलोअर्स. या at least see the content, see what he or she is giving, and also Google it. But I'll tell you from my own experience, like when I have started doing podcast also now, so there's a parameter which if I'm approaching someone, not अभी तो मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जिनको मैं बहुत जानता हूँ या मेरे कहने पे लोग आ रहे हैं honestly. But the thing is कि एक if I am approaching a new celebrity or someone, a media personality, they all are like, जयेश फॉलोअर्स नहीं है तेरे इंस्टाग्राम पे, जयेश तेरे इतने व्यूज नहीं आता है. बॉट नहीं है ना मुन्ना, कौन बॉट पे? नहीं है ना. इट इज अभी तो ये क्या ही हो गया है, Even on चॉकलेट YouTube. खाने जैसा हो गया है. इवन ऑन यूट्यूब, Yeah. forget that. Even the movie ratings, Hmm. आप paid PRs. You pay and you get the PR. You pay, you get bots. So I think if somebody is telling you that before coming to your podcast, give them an answer. I don't have bot followers. Either I have to get my hands dirty. What to do? See, if I am very open to say this, if I have 1.1 million, Hmm. उसमें से 80 80% are organic, Hmm. rest 30% are bots, and I think everybody in the world has it. Yeah. Yeah. So it's nothing to hide and it's nothing to lie कि नहीं मेरे 2 मिलियन ही है. अरे अगर 2 मिलियन है तो उतने लाइक्स और कमेंट्स भी तो होने चाहिए. होने चाहिए. देख के पता चल वो नहीं है ना, है. तो 2 मिलियन कैसे हो गए फॉलोअर. सो आई थिंक ठीक है to give that highlight to your Instagram. If people are doing that, that's their choice. Even I have done it. It's not a very very big thing, but organic तो organic होता है. That is the real reach, and I think you're doing very very good. And I'm very proud to come to you because कुछ तो real है यार तेरा. हाँ, वो रखना, जेन्युइननेस रखना बहुत ज़रूरी है. हाँ. बिकॉज़ क्या है ना, आज के टाइम पे इफ यू लूज़ दैट इनोसेंस इन यू नो, वो मुझे लगता है एक इंसान के अंदर सबसे अच्छी अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है उसकी काइंडनेस और उसकी Very true. इनोसेंस. अगर ये दोनों नहीं है, ये दोनों चीज़ें ही आपका कैरेक्टर बनाती है, व्हिच आई फील. So what I feel about Mindster is what I've achieved is you must be in so many people, one of the people who is not saying this, that Sana, oh wow, you have a 1 million follow. But again, I heard this, that my Instagram is very good. This is what I've achieved. I have not achieved 1 million follower. Yeah. I've achieved this comment what you gave me right now, because even Divyansh, when he called me for his podcast, this is what he said. Other people also, when I go for an interview or I meet them, they say this, that elegance comes from your Instagram account. And I think this is what I've achieved more than the followers. I think the comments, what I get for my Instagram page is this is what I have. So I'm very proud of it. Yeah. बट डू यू फील इट्स अ सीवी राइट नाउ कि ये अच्छा होना ज़रूरी है तब जाके मुझे आज के टाइम पे मार्केट में काम मिलेगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली अच्छा होना तो ज़रूरी ही है, बट मुझे ये भी लगता है with my experience on Instagram that you have to be very active. No matter you put a wallpaper, you just write anything or put a story, but your Instagram should be active. करेक्ट. It has to be active. People मतलब अगर जो आपके followers हैं उनको भी आप दिखना चाहिए स्टोरी पे.
Because if you don't see, why will they follow you? They'll unfollow you. So I think Instagram and social media is such a thing that no matter what you put, you don't put your picture, you put anything, but you have to be active in. Yeah, yeah, So yeah. this is what I believed and experienced that नहीं यार अगर हफ्ता भर भी कुछ नहीं डालो तो होता है, फॉलोअर्स Correct. गिरते हैं गिरते हैं. और Correct. रोज डालो तो बढ़ते भी हैं, ऑर्गेनिक. Yeah, yeah. Yeah, so I think you have to be very active. You have to show yourself as much as you can because nobody is going to again come to your door to knock. You have to walk ज़रूरी है. and you have to be very, very visible to the world and people that you exist. You have to remind them that you exist. Yeah, वो तो है. Consistency is what I feel YouTube is also pushing. Yeah, बिकॉज़ कोई पॉडकास्ट होगा जो सुपर हिट जाएगा, कोई पॉडकास्ट होगा जितना सोचा है उतना नहीं परफ़ॉर्म करता। correct. सो वी कांट बी थिंकिंग कि अरे ये मैं जब आता हूँ ना लाइक इवन इफ आई एम सिटिंग विथ यू, मैं यही सोच के आया हूँ ये मेरा बेस्ट है, हाँ, ये मेरा बेस्ट है। correct. तो एवरी टाइम आई एम गोइंग विद द सेम एनर्जी Yeah, yeah. बिकॉज़ मोर देन आई फील नाउ मोर देन कि ये हिट होगा, फ्लॉप होगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ आई लव दिस। Correct. I love to talk to people. I'm very happy कि finally you are there and I've get a chance to talk to Yeah. you. Beat anyone. मेरे को सबकी कहानियाँ जानने में मजा आता है, उनकी क्या Correct. लाइफ जर्नी रही है. You said you started as cheerleader. You have done that. Yeah. How did that happen? So I was from childhood always a dancer. I used to love dancing. And I am born and brought up in Nagpur. Okay. तो वहाँ पे समर कैंप्स होते थे शामक दावा के, मॉम मुझे वहाँ डालते थे। फिर मम्मा पापा हम सब बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो आई हैव ऑलवेज सीन द इंडस्ट्री वेरी क्लोजली बिकॉज ऑफ माय फादर। सो एक शौक था ही डांस का, एक्टिंग का नहीं। सो आई केम टू बॉम्बे पर डैड ने मुझे अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स में डाल दिया एंड फ्रॉम देयर आई जॉइंड शामक अगेन एंड शामक पिक्ड 6 गर्ल्स फ्रॉम द क्लास। ठाकुर विलेज में समर कैंप हो रहा था। Okay. 6 girls from the class and he said कल ऑफिस आ जाना। I went in my heels, ये ऐसा ही था wooden floor and then I just entered and he said hi, no sitting, nothing. He had a laptop and he played Desi Girl, said nacho. I started dancing. So I was never shy for dancing, never. So I started dancing. He said, okay, you can go. After 3 days, I get a call that you are selected for Kolkata Knight Riders की cheerleader coach on NDTV Imagine. तब NDTV था ना, तब तो Netflix नहीं था. So we were 26 girls. From that, 6 were the winners actually. Second IPL. Oh, second IPL 2009. Yeah. So second, third, fourth we did and after that it was done. But it was crazy. ये सब जो बातें होती है ना कि आफ्टर पार्टी में ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. Okay. And there's no casting couch in the industry. I'm sorry, but there's no casting couch in the industry. And there's no ladki bazi in any IPL after party because I've been there for 3 years on a contract with Cineyug. So again, it is the way the girl is, portraying herself. तो फिर वहाँ से मैंने that was actually what gave me fame and what is celebrity I came to know from that thing. But I was so young that time कि मुझे यही नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ नाच रही हूँ. For me dance was everything. आगे पीछे शाहरुख खान, what is happening, I don't care. Okay, it was like that. पता ही नहीं था. मैं इतना फास्ट सब कुछ हो गया ना. I didn't know what happened with me. I didn't know how I became so known and people started knowing me by Shahrukh Khan's cheerleader. कुछ समझ में ही नहीं आया उस time. And then that's it. There was a separation in the family and a little bit downfall again. And then I went into modeling. I was Miss Maharashtra, then Feminist Style Diva. I was a debonair model also. So yeah, that's how my career went on. How did modeling came to you? Like, what was the inspiration that after cheerleading, after you love dancing and आपने ये सोचा कि मैं इसको dancing में ही आगे में लेके जाती हूँ? Why did you turn into modeling? Actually later on because as I told you पापा ने मुझे अनुपम खेर join करा दिया था, हम्म. right? So
I had learned acting as well. Okay. I have done Ashok Chakra, the Kasab terrorist attack, वो जो हुआ था बॉम्बे में, उस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, which was released in Fun Republic. And I've done a lot of serials also those time, like I Heard Fear Files, a lot of serials also that time. So I got into the industry properly. And modeling was always within me because मुझे heels पहनना बहुत पसंद था. And Sushmita Sen was like, she used to inspire me a lot. And in dancing, Karishma Kapoor. So I had ये दोनों के पिक्चर्स मेरे कबर्ड के पीछे जब मैं छोटी थी, तभी से मैं स्टिकर लगा के, I used to watch them and it was always there. And Priyanka Chopra, yes, because I really like her as a person, not as an actor, I would say, but as a single woman, I really love her and I would love to be that, a strong woman who is just by herself. And I think, yes. I love her music videos which she had done after going to Hollywood. हाँ, उन्होंने पिटबुल के साथ गाना किया था, उन्होंने खुद के ओरिजिनल्स गाने निकाले थे। दैट टाइम आई एम लाइक ओह वाओ! yeah. वो लाइक ये सोचना वो टाइम पे, हम आज के टाइम पे वी आर लाइक कि हम अभी इंटरनेशनल सिंगर्स को सुन रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, बट वो टाइम पे प्रियंका चोपड़ा हैज़ ऑलरेडी डन दैट। Yeah, exactly. And even today, nobody can replace her. नोबडी बट Nobody can. I just love her. मैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज के कुछ कोट्स होते हैं जो मैं सेव कर लेती हूँ. The one which she said that I can buy my own diamond ring was the best one for me, and that that is stuck in my head. And yes, we girls can buy their own diamond ring. सो डायमंड रिंग तो नहीं, पर अभी आई हैव समथिंग फॉर यू व्हिच इज़ लाइक कि अब मैं ना बचपन में जैसे गेम्स खेलते थे, सो आई बॉट समथिंग। Okay, सो अभी हम गेम खेलते हैं और गेम खेलते-खेलते बात करते हैं। done. एनली सना, आपके बचपन में लेके जाने का पूरा प्लान है आज मेरे पास। ये गेम कभी खेला आपने? हाँ, बचपन में पर याद नहीं है अच्छे से. इसका नाम है स्ट्राइक 4। सो गेम्स रूल्स आर वेरी सिंपल। ये हमारे पास मेरे पास की येलो कलर है और आपके पास Red है. रेड कलर है। सो हमें ना इसके अंदर या तो येलो होना चाहिए 4 या फिर 4 रेड होना चाहिए। Let's do this. लेट्स डू दिस। पहला आपका। हम्म, क्या? ठीक है. 1 2 खैंच आ जाऊँगी मैं इसलिए। हुँ, सो सना Tell me, tell me. Have to concentrate here also, have to win. या डेफिनेटली यू विल विन, बट टेल मी प्यार क्या है? जिंदगी, खुशी, दोस्ती, फैमिली. अच्छा, सो मैं डाल दूँ? मैं जीत गई. मेरा चांस है, अच्छा ठीक है. कहाँ से जीते हैं? सॉरी। प्ले प्ले. 1 2 3 आई विल मेक इट। सो व्हाट योर ओपिनियन आज के टाइम पे जो सिचुएशन है अबाउट लव, लाइक हाउ पीपल आर ट्रीटिंग लव? जेन ज़ीज़ का अलग डेफिनेशन है प्यार का, एंड आई बिलीव अभी आप और मैं उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे हमें कोई पसंद आ जाता है तो वो इनोसेंस हमारे अंदर आज भी रहती है। वो पहला प्यार, पहली मुस्कान, पहला आई कॉन्टैक्ट आज तक हमें याद रहता है। वो इनोसेंस और प्योरिटी रहती है। आज के टाइम पे नहीं है, थिंग्स आर वेरी क्विक, एक स्वाइप लेफ्ट और राइट के ऊपर है। जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, so this is a very big topic, but आज के ज़माने में प्यार नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि me being a woman and being a girl, I would say that government has a law only for women कि अगर डाइवोर्स होगा तो एलिमनी इसको मिलेगी,
मतलब सब कुछ the whole law is for the women. There's no law for men. Okay, this is the second podcast I'm saying this, but I'm repeating this because I really want things to little change. Because अगर ये चीजें चेंज होगी ना तो थोड़ा डाइवोर्स कम होगा, रिलेशंस कम टूटेंगे, फैमिलीज साथ रहेगी। अभी क्या हो रहा है ना, लड़कियां लड़के ढूंढती है, 2 साल शादी कर लो, डाइवोर्स ले लो, एलिमनी लेके बैठ जाओ। सो आई थिंक दिस I don't know what is it. This is called a trend or what, I don't know. But then you have to somewhere think कि यार वो लड़के की भी तो family है ना. You know, even he can get, I'm getting goosebumps. Even he can get hurt, or the family or parent can also get hurt, because even the boy has a family, right? And and if the law says कि लड़की को बाहर जाके काम करना है, so I think that everything has to be 50-50. Okay? There are a lot of boys and men who don't work, and there are a lot of girls who are actually in love with them, जो काम नहीं करते। बट जरूरी नहीं है कि एक लड़के को, लड़का है तो उसको 100% पैसा कमाना ही है, ये नहीं। why is that? If there is a 50-50 law, then when you say a housewife is a worker also, then a house man can also be a worker, right? अगर वो घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, तो इसमें कोई उसको डिग्रेड मत करो, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वुमेन टुडे, इवन माय मदर इज अ हाउसवाइफ। So if my father was a housewoman, I would have had the same respect as I have for my mother, right? Because even he's a working man. So if a woman is going out and earning and taking care of the house, and the man is taking care of the house, it is the same thing. It is 50-50, दोनों साथ मिलके ही तो घर चला रहे हैं ना। करेक्ट। तो फिर, and then the alimony thing is that if a woman is working and then there's a divorce, after that also the pressure of alimony goes on the boy. Why doesn't the boy get the alimony from the woman? बिकॉज़ सोसाइटी के अंदर एक वो परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि लड़का है तो कमाएगा ही, उसका तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। वो ही लाइक हमारी बहुत साल पहले से ये प्रथा है ही है। और वही साल पहले से प्रथा ये भी थी कि लड़कियां काम नहीं करेगी, घर बैठेगी। हाँ, तो वो प्रथा चेंज हुई ना, हाँ, हुई ना। वही है। तो ये भी हो सकती है। करेक्ट। Because there are a lot of happening. There was a time when women used husbands के या लड़कों के डिप्रेशन में, अभी ऑपोजिट हो गया है। There are a lot of husbands, men and boys committing because of the girls pressure or because of the wife's pressure। बहुत ज़्यादा ये ऑपोजिट हो गया है ये। So I am not, I don't support both the things, because equality means, I think, both the ways. If she's earning, he's earning. If she's not earning, and you are giving the same respect to the girl, if she's not earning, give the same respect to the boy if he's not earning। You never know यार, उसको काम नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है। You never know what is happening in his life। But if that girl is loving that boy, the family should accept it। अभी ऐसी बहुत फैमिलीज है जिनको लड़का पसंद आ जाता है, और वो अपनी डॉटर को ये बोलते हैं कि अरे ये तो कमा नहीं रहा। हुँ, करेक्ट। तो वो कमा नहीं रहा की वजह से बहुत शादियां नहीं होती। जो सच्ची वाली शादियां होती है ना, वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लड़का कमा नहीं रहा। अरे अभी नहीं कमा रहा है, हो सकता है 2 साल बाद कमा ले। हो सकता है 2 महीने बाद वो लड़की के फादर से भी बड़ा आदमी बन जाए। कभी-कभी लेडी लक भी रहता है ना। कभी कभी लेडी नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, दोनों मिलके अपना घर चला लेंगे। आज एक ऑटो वाला भी अपना बच्चा पालता है ना, एक भिखारी भी गोदी में लेके भीख मांगता है, पाल रहा है ना। तो एक लड़का-लड़की अगर शादी कर ले, हू आर इन एक्चुअली ट्रू लव, दे कैन ऑल्सो रन देयर लाइफ, हैव 2 टाइम की रोटी ही खानी है, वो खा सकता है ना कोई भी। So there are a lot of things from family pressure also, no doubt. It's not only the girls, but there's a lot of family pressure। एंड बाद में जो स्मॉल टाउन से लड़कियां मेट्रो सिटीज में आ रही है, वो यही मेंटालिटी से आती है कि हम यहाँ आएंगे, एक लड़का फंसाएंगे, शादी करेंगे या अफेयर करेंगे या झूठी प्रेगनेंसी कर देंगे, उसको डरा के पैसा ले लेंगे,
या उसने मेरा किया है या छेड़ा है बोल के धमकी दे के पुलिस स्टेशन लेके चले जाएंगे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. देयर इज नो लॉ फॉर अ मैन. टुडे इफ यू go to the police station and say कि मेरे को सना ने छेड़ा, the पुलिस वाला will slap you and tell you ये ब्योड़े यहाँ से निकल. लगेगा मेरे को। ठीक है, पर वही चीज अगर मैंने करी ना तो तू अरेस्ट हो जाएगा. करेक्ट, करेक्ट। Am I right? It's not that. See, I'll tell you, I can't name the college, but I have experienced this in my college in Nagpur. So there were 4 5 girls who had tied a college का ही हमारा एक worker था. He was very old. He was tied on the chair, okay, for 4 days, and those girls had him. So about there's not only boys doing it. There are even girls gang who do and who drink and you party in the night. और 16 years 17 years 18 years के लड़के को वो लोग भी तो करते ही होंगे, हमको कैसे पता. करेक्ट। अगेन ये जो छेड़ा-छाड़ी वाली भी जो बात होती है सिर्फ लड़के नहीं करते ना, लड़कियां भी करती है. It's not only the men. Today if I go to a director showing my cleavage and giving him that intuition, only then the director will have the guts to ask me out. सही बात है ना. अगर मैं वो इंट्यूशन ही नहीं दूं, कोई भी, नॉट ओनली द डायरेक्टर, एनी मैन एनी बॉय इन द वर्ल्ड, अगर मैं वो इंट्यूशन ही नहीं दे रही हूँ उस मेल पर्टिकुलरली मेल पर्सन को, उसमें वो गट्स कैसे आएगा मेरे को कॉल आउट करने का या छेड़ने का या वन नाइट स्टैंड बोलने का, अगर मैंने उसको पब्लिक में थप्पड़ मार दिया तो. हाँ। So I think it is lot of girls who have to take care of their own selves. Go in such a way that boys don't have the guts to look at you. एंड आई फील कि अगर आप जो भी पहन के भी जा रहे हो, बट आई फील कि अगर आपने सामने वाले को इंट्यूशंस नहीं दिए हैं, वो वाइब्रेशंस नहीं दिए हैं, तो नहीं कर सकता कोई, कर सकते। नहीं करेगा. अरे भाई, अभी इतने लोग अगर है इधर, तूने मेरे को छेड़ा, ये जितने बैठे ना सब मारेंगे तेरे को. करेक्ट। सही बात है. टिल द टाइम आई डोंट गिव यू द इंट्यूशन, यू विल नॉट आस्क मी आउट. हाँ ठीक है, इसमें से देयर मस्ट बी 10 15 20% ऑफ मेंस जो बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन खुद कर भी लेते होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं 100% लड़कियों का ही है. होता होगा ऐसा भी दैट देयर आर फ्रस्ट्रेटेड men and husbands and women, lot of boys also that who don't get girls and who crave for it. वो कर भी लेते हैं, but there are girls also यार like that then. करेक्ट। So it is the same. It is, I don't know why men's को बहुत ज़्यादा ही डाउन कर दिया जाता है इस चीज में और women's are always high. But I think is, and even if you're wearing such kind of clothes, I think it is the way you carry yourself. ये You wear a bikini, you can look sexy. या You cannot look vulgar. Don't look vulgar wearing a bikini. You carry it in such a way that you look. Today if I see a girl and she's very well dressed, मेरे भी मन में आता है to comment her, oh wow, you're looking very pretty. That, so it is whatever you wear, the way you carry it, I think that shows your personality. So I think there are a lot of things. It is a humble request. मैं अकेले से तो नहीं होगा, but I plead to the government in 2025 to remove a 50-50 law for men and women both and stop the alimony thing यार, because वो लड़के को सिर्फ बीवी नहीं चलानी है, अपना पूरा घर चलाना है. So I think alimony should be both ways. If both ways not, I think it should stop. वो पावर पे भी डिपेंड करता है ना कि लड़का है तो लड़का ही करेगा या लड़की है तो लड़की का काम ये है। पहले के टाइम पे पावर जिसके हाथ में होती थी ना, ये पहले से ही है। पहले के टाइम में ऐसे लड़के बहुत पावरफुल होते थे। तभी लड़कियाँ इतनी परेशान रहती थी, पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे सिचुएशन बदल गई है, तो अभी लड़कियाँ ज़्यादा पावरफुल हो गई, जब लड़के एकदम डरे हुए रहते हैं। वो यही तो मैं बोल रही हूँ ना, जो तुम बोल रहे हैं ना, पहले ऐसा था, है ना? तो वो इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग ने ही बहुत मोर्चे निकाले, बहुत प्लीड किया कि औरतों को भी काम करना चाहिए,
वुमेन्स आल्सो शुड हैव द राइट टू वर्क। हमने वो किया ना, वो मिला वो, इट इज़ अ गुड थिंग। एवरी वुमन, एवरी फीमेल शुड हैव देयर ओन स्टैंड, should have their own bank balance, should not be dependent. It is a very, very good thing. But then what about the other side? अभी एक को बढ़ाने के लिए आपने दूसरे को नीचे डाल दिया and then you say it is 50-50. Where is the 50-50 gone? There's no 50-50. There's no 50-50. You wanted women to be 50-50. जैसे हम बोलते थे ना कि लड़का और लड़की में या आदमी और औरत में फ़र्क नहीं है। इसमें अभी बहुत फ़र्क है भाई। ओके था ना, गेम कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन, बट वेरी नेसेसरी कॉन्वर्सेशन। ये बात लेके आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। देख, ऐसे गेस्ट को अपने शो पे बुला के हराते नहीं हैं। तू आ जा। नहीं, नहीं। हाँ? हाँ, 50-50। तो ये 50 समथिंग होने वाला है, कोई नहीं जीतने वाला है। चल। हम्म, ट्रिकी। मुझे लगा जीत गए। क्या हो गया? क्यों? नहीं, तू जीतने वाला था। ओ अच्छा, या ओ हाँ। अब तू जीत जाएगा यार। और कैसा लग रहा है गेम खेल के? कि बचपन में ना गेम्स बहुत खेलते थे हम। फिफ्टी फिफ्टी। थैंक यू, यही चाह रही थी मैं। नहीं, वो बोला था ना गेस्ट को जीतने देती। यू ऑलरेडी वॉन। मैं जीत गई। या यू वॉन इट। ये इतना प्रैक्टिस किया था मैंने ये गेम, बट आई एम सो हैप्पी। आप शायद पहली बार खेल रहे हो ये, या बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद। एंड यू वॉन इट। या एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू आई एम द गेस्ट। So this is a very special book which I have personally designed for you, and it's a very nice images of your old थैंक यू। ओह, memory, सब कुछ है इसके अंदर। I would like कि आप ये देखो और आप मुझे बताओ कि what picture resonates with you, इस पिक्चर के पीछे क्या मेमोरी है। So whatever best I can मैंने किया है। Now this is for you. मतलब तू रुलाएगा अब। Oh my God. Okay, this is Nagpur when mom and dad used to live together. And these are my two best friends, two brothers, me, Jan, मेरे भाई। विदर और अमन के बिना सब कुछ बहुत इनकम्प्लीट है। This is an award given by Sonu Sood for the internet personality जो गूगल ने मुझे टैग दिया था। Okay. And this bridal thing is shot in my father's house. You look so gorgeous in Indian, no? Like you should keep doing more photo shoots into wearing. मिलता ही नहीं यार इंडियन। Oh my God! So this picture is in Delhi with my guy Tahir Khurram. I love you so much, and yeah, he's my better half. तो ये उसके साथ था पागलखंती। ये एक वेब सीरीज ही थी जो मुझे मिली थी और फ्रॉड निकली। तो इसका कभी शूट ही नहीं हुआ। सिर्फ ऐसी पिक्चर्स खींच के उन लोग ने पता नहीं क्या हुआ फिर। ऐसा होता है? हाँ, और क्या होता है? पर वो दे वैनिश्ड।
आई डोंट नो। मतलब अच्छा, और सबसे फनी बात ये है कि उनका पूरा स्क्रिप्ट जो है ना, हाँ, सीज़न 3 तक मेरे पास पड़ा है। मैं चाहूँ तो उसको कोई डायरेक्टर से शूट करके मैं अपना सीरीज़ भी बना तो सकती वो तो ऑलरेडी लॉक्ड होगा प्रोडक्शन हाउस। हूँ। नहीं, वो आईएमएक्स कुछ खुलने वाला था, फिर खुला नहीं। फिर हर दिन हमको स्क्रिप्ट रिहर्सल के लिए बुलाते थे, बहुत सारे एक्टर्स थे यार। हर दिन स्क्रिप्ट रिहर्सल के लिए बुला रहे थे। फिर एक दिन बोला कि फ़ोटोशूट करना है, तो ये वो ही है फ़ोटोशूट। ओके, तो कभी ये फ्लोर्स पे भी नहीं गई है? कुछ नहीं हुआ। फिर 10,000 रुपए इससे लिया, उससे लिया, यही सब चल रहा था, स्कैम था यार। ये सब तो मेरे शूट है जो फैज़ान खान करता है। हाँ। फैज़ान खान इज़ one very good photographer. He is with me from 17 years, so वाह! I don't change my team actually. मतलब मैं उसके लिए पहली मॉडल हूँ जिसके ऊपर उसने कैमरा उठाया था, और मेरे लिए वो पहला फोटोग्राफर है जिसने मेरी पिक्चर खींची है। और आज तक वही है, आज तक वही है। बॉन्डिंग ही कुछ अलग हो जाती है ना? Yeah, all my even my makeup artist Shefali, she's also like that from so many years. This is Goa, but I don't exactly remember. This was with Shikha, my ex best friend. And this is a person whom I've recently met with a very beautiful heart, Jayesh. Thank you for calling me on your podcast And and you're smile, welcome. please. Thank you. This means a lot. सो सना, फ़िल्म इंडस्ट्री में लाइक व्हाट डू यू थिंक अभी क्या फ्यूचर होने वाला है? बिकॉज़ आज के टाइम पे ना एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू ओटीटी। थिएटर्स लोग जाना ही बहुत कम कर दिया है लोगों ने। मतलब पुल करना इतना डिफ़िकल्ट है, इतनी बड़ी मूवीज़ बनती है, बट वो अफ़ेक्शन और वो प्यार आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है जो पहले से मिलता था। प्री आई कैन से। सो यार, क्योंकि में ना लोग इतना रिलैक्स हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके। पहले देखो, सब्जी भाजी लेने भी हम लोग जाते थे बाहर। अब तो ना सिर्फ मम्मी पापा स्विग्गी से नहीं मिल रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया स्विग्गी से मिल रही है के बाद। तो मुझे ये लगता है कि ये के बाद जो रिलैक्सेशन आ गया है ना लोगों में, वो कुछ ज़्यादा ही आ गया। उनको घर पे ही बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, घर पे ही मूवी देखनी है, घर पे ही ये करना है, सब कुछ। देयर आर नो डिनर डेट्स, देयर आर नो मूवी आउटिंग्स, कुछ नहीं है, सब एकदम ऐसे, मतलब 4 दीवारी में ही आपका सब कुछ हो गया है अब। इवन द भाजी वाला इज़ कमिंग होम, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक। पहले वॉक करना होता था, जाना ना, अभी ये सब कुछ, जनरल स्टोर जाओ, किराने की दुकान जाओ, अभी किधर है ये? मज़ा आता था ना? बहुत मज़ा आता था यार, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अब सब स्विगी, ब्लिंकिट चल रहा है। बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज़ है कि जो आज आप मिस करते हो, और याद आती है कि दुकानें जाके अरे! ये यहाँ पे मेमोरी जुड़ी। जैसे मैं छोटा था तो 20 या 30 रुपए लेके मैं वीडियो गेम खेलने जाता था 1 घंटे के लिए। तो वो एक मेमोरी है जो आज तक याद है। चाहे आज घर में प्लेस्टेशन हो, मज़ा नहीं आता जो तब मज़ा आता था। हाँ, उस टाइम मतलब इवन द रिचेस्ट टू द रिचेस्ट फैमिली के बच्चे 2-3 घंटा धूप में मिट्टी में खेलते थे यार। हाँ, सच्ची में मैं भी, हम लोग भी, मैं गीली मिट्टी मेरे को बहुत पसंद थी, मैं खाती थी। तो हम लोग का 3 टू 5 फिक्स्ड होता था कि बाहर जाओ खेलो, रोड पे। और अब मम्मी लोग, फादर लोग बोलते हैं बच्चा बिल्डिंग में जाएगा, धूप में जाएगा, काला हो जाएगा। हम भी वैसे ही बड़े हुए हैं, मिट्टी में ही बड़े हुए हैं। एंड आई थिंक ये जो स्क्रीन टाइम हो गया है ना, I think this is spoiling the generation a lot. If my child, I will never let him or her know what a phone is, what a TV is, and even what chocolate is. For him or her, the chocolate is going to be dry fruits, and there's no screen time, no phone in the world, no TV. टिल व्हाट एज? Till at least 15, 10. बट डिफ़िकल्ट है ना आज के टाइम पे। नहीं यार, you must have also played more with your mother and father and your friends than screen time. या फ्रेंड्स तो डेफ़िनिटली बहुत। आजकल के मम्मी-पापा को टाइम ही नहीं देना है ना बच्चे को, इसलिए फ़ोन पकड़ा देते हैं हाथ में। सो आई वुड रादर, एंड हमारे टाइम पे प्ले स्कूल नहीं था। हाँ,
प्ले स्कूल नहीं था ना। अब क्या कर रहे हैं ना, 1 ईयर से बच्चा प्ले स्कूल चला जाता है। तो आई वुड सेव दैट मनी फॉर द प्ले स्कूल फॉर माय चाइल्ड्स एफडी एंड आई वुड प्ले विथ माय चाइल्ड यार। मैं तो नहीं गई प्ले स्कूल, मैं सीधा केजी 1 में गई हूँ। हाँ, हम भी। है ना? तो वो सारा जो हमारा बचपन था, हमने हमारी मॉम्स और फादर्स के साथ ही, सिस्टर ब्रदर्स के साथ ही निकाला है ना। सो आई वुड रादर, अभी क्या हो रहा है कि बेबी हो जाता है प्ले स्कूल में डाल दो, तो वो मुझे लगता है 4-5 आवर्स का होता है शायद। ओके। तो उतनी छुट्टी मिल जाती है मदर को रेस्ट करने के लिए या बाहर जाने की। आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू सी माय चाइल्ड ग्रोइंग, एंड दैट प्ले स्कूल का 1 लाख 2 लाख जो हम स्टुपिडिटी में वेस्ट कर रहे हैं, आई वुड रादर सेव इट फॉर माय ओन चाइल्ड यार। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं तो जैसे बड़ी हुई हूँ, आई विल मेक श्योर माय चाइल्ड आल्सो ग्रोज लाइक दैट। अभी क्या करते हैं ना, एक फास्ट, क्विक, हाँ, रैपिड फायर करते डन। हैं। इसके अंदर क्या है, 40 सेकंड मिलेंगे आपको। ओके। तो मैं आपसे एकदम रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको हाँ, ना, नहीं में जवाब नहीं देना है। यू हैव टू ठीक है। अवॉइड दी क्योंकि दे दिया तो मैं हार जाऊंगी। या और मेरे सवालों को रिपीट नहीं करना है। हाँ हाँ, ठीक लूप है। होल है वो, मैंने पकड़ के रखा हुआ है। डन। सो आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब अब। तो सना, आपको चाय पसंद है कॉफी? कॉफी। अच्छा, तो कॉफी ज्यादा चीनी के साथ लेते हो? चीनी। के साथ लेते हो? चीनी। के साथ लेते हो? ठीक। ये जवाब नहीं है वो। अभी मैं हाँ बोलूंगी तो बोलेगा हाँ। हार गए आप, हमने हाँ बोल दिया। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अब मैं बोलूंगी नहीं, तू रिपीट ही करते रहे। चल बोल। चलो ठीक है। ओके। सो आपके 40 सेकंड। फोकस, हाँ, फोकस। आई एम फोकस्ड, यू आर चीटिंग। हम नॉट चीट। ओके, लेट्स डू। आंसर तो देना पड़ेगा ना। हाँ नहीं बोलना है मुझे। हाँ, ना, नहीं। ओके। ये तीनों वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं आंसर के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आते हुए आपको ट्रैफिक मिला था क्या? मिला होगा। इन दैट वे यू हैव टू प्ले। ऐसा नहीं, हाँ ट्रैफिक, ट्रैफिक आंसर नहीं है उसका। अच्छा ठीक है। या तो जवाब तो चाहिए। ओके। सो आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके। आपको टॉफी खाना पसंद था बचपन के अंदर? टॉफीज, हाँ बहुत है। हाँ ठीक है, वापस करते हैं। वापस करते चल। एक बार। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। मॉर्निंग डेज के अंदर आपको पानी पूरी खाने का मन करता था क्या? टेप पूरी। सेव पूरी खाते थे आप? बहुत ज्यादा। अच्छा, कहाँ की खाते थे? लोखंड वाला। तीखी पसंद है या फिर सूखी पपड़ी? सूखी पपड़ी। अच्छा, सूखी के अंदर सेव डलवाते थे क्या? गीला चटनी। मीठा चटनी। मीठा चटनी डलवाते थे? जवाब तो दो। ये जवाब भी था जो हुआ। आई लाइक मीठी चटनी इन द सेव पूरी। जवाब दे दिया मैंने। चलो ठीक है, आपके 40 सेकंड खत्म होते हैं, आप जीत चुके। पीटर। आए, ये सब गेम मैं घर पे खेलने आनी। थैंक यू सना फॉर कमिंग फॉर माय शो, इट वाज लवली हैविंग यू। हमने एक गेम खेला और एक गेम में आप जीते, एक गेम में नहीं नहीं, दोनों में मैं जीती हूँ। हाँ, दोनों में आप जीते। बट आप प्लीज बताइए आपको कैसा लगा? I loved it. I've done 2 podcasts before you, and this was really very fun, friendly. और मुझे ये नहीं लगा कि मैं तेरे से पहली बार मिल रही हूँ। And thank you for this. This is going to be a memory always till I die. You are always going to be in my heart, and I will frame this. Thank you very much for calling me. एंड थैंक यू, थैंक यू सना, थैंक यू गाइस। Thank you. आज का ये जो पॉडकास्ट रहा है ना, ये हमारी इक्वालिटी, यूथ और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड आई कांट बी सो मच ऑफ ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हैव सना सूरी ऑन टुडेज पॉडकास्ट, बिकॉज जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने ये बात रखी है और हमारी जनरेशन के लिए ये बातें होना इतना ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तो एज अ मैन, और नॉट जस्ट एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये कॉन्वर्सेशन ने मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर दिया है, हिला दिया है। एक रियलिटी चेक होता है ना,
वो इस कॉन्वर्सेशन ने मुझे दिया है। सो आप लोग प्लीज़ अभी अपना ओपिनियन बताइए, नीचे आप टाइप करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज़ पॉडकास्ट? बिकॉज़ इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू यूजुअली। और उसके अलावा ये जो हमने गेम खेला था, ये गेम आपको कैसा लगा था? ये भी प्लीज़ आप नीचे मुझे लिख के बताइए। अगला कौन-सा गेम खेलना है, ये भी लिखिए एंड आई विल मेक श्योर कि वो हमारे अगले पॉडकास्ट में हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और अपकमिंग पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नायाब। थैंक यू।